Assalamu alaikum, boys. I hope that you are taking care of yourself. Stay indoors. Do not go out without any necessary things. Use mask. And if you go to a shop to buy something, to also use gloves. These are some basic things, necessary things that everybody keeps on telling you. And in your house, when you come back from outside, you must take off your shoes outside and then wash your hands at least for 20 seconds with soap. Wash your hands. If sanitizer is available, then you should also sanitize your hands. So these are the things that we keep on telling people. Take care of your parents. And if you have a grandfather or your father is about 50, above 50, then do take care of him. Do not let him go outside. Right? Okay. Boys, last time when we met, I told you that we will be doing past continuous tense. And I also told you that this is very easy tense, just like present continuous tense. In present continuous tense, you used is, you used are, and ing form of the verb. Continuous tense. And here, past continuous tense, we use this tense to show, this tense is used to show that an action had been taking place, going on in the past. लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस जो था, अभी क्या कर रहे हैं? ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, वी आर स्टडिंग, वी आर प्लेइंग, वी आर वॉचिंग टीवी, राइट? दैट डिस्क्राइब प्रेजेंट. बट a past continuous tense that something was happening in the past. When you saw it, yes, you saw, we use was, were, क्या लगता है इसमें? Was, were, continuous tense, ing form of the verb. And here is an example that I have written. It was raining yesterday, right? Present continuous में हम कहते हैं कि it is raining right now. It is raining. बाहर बारिश हो रही है. लेकिन अब yesterday, आप कल में दाखिल हो गए. आपने कहा कि it was raining yesterday. Right? Second sentence is, Zafar was not taking interest in the class. यहाँ पर was were के बाद क्या लगा दिया हमने? Not लगा दिया, negative sentence. And they were, plural आ गया, plural के साथ बेटे were लगेगा. They were playing a football match. And then this is question, was were को पहले लाया हुआ है. Was he waiting for you? Was he waiting for you? देखिए, आपका जो pronunciation है, आपका accent जो है, that makes the sentence. ठीक है? Question should be read in a question tone. ठीक है? हम ये नहीं कह सकते, was he waiting for you? No. Stress कहाँ आएगा? Was पर, he पर. Was he waiting for you? That makes sense. That conveys the meaning.
right? Okay, let's do some other examples that people were waiting for their leader. People were waiting for their leader. Look, this action has taken place. ये एक्शन खत्म हो चुका है. पास्ट हम क्यों कह रहे हैं? पीपल वर हमने क्यों लगाया? बिकॉज दिस इज पास्ट. पीपल आर वेटिंग, कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है. बट हेयर वी रोट पीपल वर वेटिंग फॉर देयर लीडर. और जब इसका नेगेटिव आप बनाएंगे, पीपल वर नॉट वेटिंग फॉर देयर लीडर. were not waiting for their leader. Question? क्वेश्चन क्या बन गए बेटे? वर पीपल वेटिंग फॉर देयर लीडर. वर पीपल वेटिंग फॉर देयर लीडर, ऐसे पढ़ा जाएगा. Three players were running after the ball. ठीक? Three players were running after the ball. और नेगेटिव क्या बचेगा? Three players were not running after the ball. और क्वेश्चन, were three players running after the ball? Question mark. So I told you that this is simple tense, and we won't spend days, 2 days, 3 days in this, because I'm going to finish this tense right today. When you entered the room some time back, what you saw there? You saw fire was burning in the room. कमरे में आग जल रही थी.
चूल्हा था, वो कोई हीटिंग प्लेस थी, ठीक है. फायर वॉज बर्निंग इन द रूम, फायर वॉज नॉट बर्निंग इन द रूम. फायर वॉज फायर बर्निंग इन द रूम, क्या कमरे में आग जल रही थी. एंड टेक, go back in your notebooks, take out all the examples of present continuous and then turn them into past continuous. The only change that you will have to do there is the use of was and were. Rest will be the same. If the tense is today, and that will be changed into yesterday. That is the whole thing that you have to do. Now I'll erase it and we will do some more sentences and then we'll do some translation from Urdu to English. Somebody was asking about you. कि कोई शख्स आपके बारे में पूछ रहा था, आपका पता पूछ रहा था, आपके बारे में कुछ पूछ रहा था. That is, somebody was asking about you. इनको बेटे नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में खुद चेंज करना है, ठीक है. He was sending a message to his sister. He was sending a message to his sister. वो अपनी बहन को एक पैगाम भेज रहा था. ये मैसेज को आप मोबाइल वाला मैसेज भी कंसिडर कर सकते हैं, राइट?
look, some angry people were setting a car on fire. कि एक कार को, बाज गुस्से से भरे लोग एक कार को आग लगा रहे थे। जैसे आप अखबारों में पढ़ते हैं कि जी वो जुलूस था, मॉब था, कंट्रोल नहीं हो रहा था, उन्होंने गाड़ियाँ तोड़ी, उन्होंने गाड़ियों को आग लगाई, ठीक है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की। सो इट्स अ सेंटेंस लाइक दैट। Some angry people were setting a car on fire. To set on fire. आग लगाना क्या है? To set on fire. मैं लिख देता हूँ। To set on fire. आग लगाना। किसी देखें प्रॉपर्टी को, ये नहीं चूल्हे में आग लगाना, टू सेट ऑन फायर, नो, प्रॉपर्टी को आग लगाना, ठीक है, वहां पर आप ये सेट ऑन फायर करेंगे। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी, नॉट कि वो चूल्हे में आग लगा रहा था, वो तंदूर में आग लगा रहा था, नो। They were traveling by air. They were traveling by air. वो हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे थे, ठीक है। By air conveys everything. आप ये नहीं कह, आप से मतलब कि वो हवाई जहाज़ में हवा का सफ़र कर रहे थे, ठीक है, तो वो इतना ही काफ़ी है। They were traveling by air. The ship was sinking. बहरी जहाज was sinking, डूब रहा था, ठीक है बेटे। बेटे ये मैं लिख रहा हूं यहां पे sink, सिंक बेजान चीज़ का डूबना, ड्राउन जानदार का डूबना, यानी कि लिविंग थिंग्स, इंसान जो है, लोग जो हैं वो डूबते हैं, ड्राउन होते हैं। देखो द शिप वॉज सिंकिंग एंड पैसेंजर्स वर ड्राउनिंग। समझ में आ गई? क्रू लिख देते हैं। क्रू was drowning. क्लियर हो गई बात? शिप बेजान चीज है, हमने सिंक लगाया। क्रू जानदार, अमला, ठीक है।
सेलर्स हो गए, कैप्टन हो गया, वो जितने काम करने वाले हो गए, उसको क्या कहेंगे? क्रू, अमला। हवाई जहाज़ में भी क्रू होता है और शिप में भी क्रू होता है। द क्रू वाज ड्राउनिंग। क्लियर होगी बेटे? चलो, the dog was chasing a cat. कुत्ता बिल्ली का ताकुब कर रहा था। चेज, रनिंग आफ्टर। अच्छा, चेज, chasing a cat. The dog was chasing a cat. अब इसका इनके बेटे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आपने खुद बनाने हैं। मैं आपको लेसन के दरमियान होमवर्क दे देता हूँ, लेकिन मैं आई एम सॉरी, मैंने आपको पास्ट इंडेफिनेट का एक होमवर्क दिया था। मैंने कहा था इसको करके, इसको फ़ोटो लेकर व्हाट्सएप करके मुझे भेजना है। किसी ने नहीं भेजा। दिस शोज़ दैट हाउ मच इंटरेस्ट यू आर टेकिंग। आप लोगों का इंग्लिश का टेस्ट मेरे ऑफिस में पड़ा हुआ है। मैंने कहा था कि एटलीस्ट लोकल बच्चे वो आकर टेस्ट मेरे ऑफिस से कलेक्ट करें। ओनली 2-3 boys collected the test. This is that shows a very bad impression. That gives me a very bad impression. If you would not participate, then that will means that you are not learning, or you are not interested in learning. अब बेटे हम कुछ थोड़ी सी उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, राइट? ठीक है बेटे, वो तेज़ दौड़ रहा था। मैं कोई इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का मुश्किल सेंटेंस आपको नहीं दे रहा। वो तेज़ दौड़ रहा था। ही शी इट के लिए क्या लगेगा? वाज। ही वाज रन ing रनिंग फास्ट। आप एक कहानी सुना रहे थे। आप एक कहानी सुना रहे थे। ठीक है, यू के साथ क्या लगेगा बेटे? वर, वाज नहीं, यू वर। You were telling a story.
कहानी सुनाने को क्या कहती है? टेल, टेल अ स्टोरी। वो अपनी पुरानी गाड़ी बेच रहे थे। They were selling their old car. They were selling their old car. वो सख्त रो रही थी। देखिए, एक तो रोना है ना, ठीक है, और एक सख्त रोना है, यानी कि बहुत ज़्यादा रोना है, ठीक है। उसके लिए एक अलग लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। वो सख्त रो रही थी। She was crying bitterly. She was crying bitterly. ठीक है, bitterly यहां पर किस चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं? सख्त को। बहुत ज्यादा रो रही थी। घोड़े मैदान में चल रहे थे। Horses were grazing in the field. नेगेटिव सेंटेंस आ गया बेटे। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था। ठीक है, the peon was not ringing the bell.
अमीर आदमी गरीब को खैरात नहीं दे रहा था। ठीक है, द रिच man was not giving एल्म्स बेटे कहते हैं खैरात को, जो आप पर वाजिब होती है, जो रकम देने के, गरीबों को देने के लिए होती है, उनको क्या कहते हैं? एल्म, खैरात। The rich man was not giving alms to the poor. वो झूठे वादे नहीं कर रहे थे। देखिए, कर रहे थे पॉजिटिव, नहीं कर रहे थे नेगेटिव। वो झूठे वादे नहीं कर रहे थे। They were not making false क्या हो गया बेटे? झूठे। और प्रॉमिस की जमा वादे है, promises। ठीक है, they were not making false promises. क्वेश्चन आ गया, ठीक है, साइन ऑफ इंटरोगेशन डाल देते हैं जी। क्या वो खेलों में हिस्सा ले रहा था? वाज से शुरू कर दें या वर से शुरू होगा? ठीक है, वो है, ही है, तो वाज आ जाएगा। Was he taking part in the games? Question mark. Was he taking part in the sports, in the games? Taking part की जगह participate भी हो सकता है। ठीक है, हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट, हिस्सा लेना, टेकिंग पार्ट, सेम।
क्या वो शहर को खूबसूरत बना रहे थे? ठीक है, were they making the city beautiful? ठीक है, इसका एक और भी हो सकता है, वर दे, ये ब्यूटीफुल इधर आ जाएगा, ब्यूटीफाइंग क्या हो जाएगा? वर दे ब्यूटीफाइंग द सिटी, क्या वो शहर को खूबसूरत बना रहे थे? सेम मीनिंग। कब नहीं है बेटे? वो तस्वीर कैसे बना रहा था? कैसे? हाउ। ठीक है, हाउ। हाउ वाज ही, बेटे वाज पहले आएगा। अच्छा, अगर आपने ये कर दिया ना, हाउ ही वाज मेकिंग अ पिक्चर, से क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ट्रांसलेशन गलत हो गई, आपकी ज़ीरो मिल जाएगा। क्वेश्चन वर्ब जो है वाज वर्ब को पहले लाना है। हाउ वाज ही मेकिंग अ पिक्चर। तो ऐसे बेटे आपने ट्रांसलेशन करनी है। ठीक है, टेक, राइट उर्दू सेंटेंस एंड देन ट्रांसलेट इट। ठीक है, राइट अ पॉजिटिव सेंटेंस, टर्न इट इनटू नेगेटिव and turn it into interrogative. That is your practice. So I told you that I won't take a long time on past continuous tense because tomorrow we are going to start past perfect. ठीक है, उसमें maybe कि I may take 2 days, but because that is important. And something to understand is there. तो इसकी प्रैक्टिस करनी है बेटे, और जो काम मैं देता हूँ देखें उसको करें। उसकी, सबके पास स्मार्टफोन है बेटे, सबके पास है, उसकी फ़ोटो ले, अपना नाम आपका वाज़े लिखा हुआ हो और मुझे व्हाट्सएप कर दें। सिंपल इज़ दैट। जो पेपर ऑफिस में पड़े हुए हैं वो व्हाट्सएप नहीं होंगे, वो आकर जमा कराने होंगे, बिकॉज बेटा दे आर फुल ऑफ मिस्टेक्स एंड एवरी मिस्टेक हैज़ टू बी करेक्टेड। ठीक है, तो वो पेपर आपने कलेक्ट करने हैं मेरे ऑफिस से। तो दिस इज़ सफिशेंट फॉर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड टेक केयर। खुदा हाफिज़।